بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج کی گفتگو کا عنوان صرف گپ شپ ہی ہے کہ کوئی مسئلے مسائل اگر کوئی دوست پوچھنا چاہے، کوئی اس موضوع پر بات کرنا چاہے تو وہ کمنٹ میں سوالات کر سکتا ہے، تو انہیں سوالات کے عنوانات پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، چاہے وہ شرعی مسائل ہوں، نفسیاتی مسائل ہوں، معاشرتی مسائل ہوں۔ تو آپ میں سے جو کوئی بھی سوال کرنا چاہے تو بلا جھجک کر بھی لے اور اسے آگے بھی شیئر کرے۔ عنوانات کے ساتھ گفتگو تو کافی ماشاءاللہ درس قرآن میں ہماری ہوتی رہی۔ آپ بغیر عنوان کے جو آپ سوال کرنا چاہیں، کافی دوستوں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ وقت اس طرح ہو، تو آج تو اسٹریم یارڈ پر آئے ہیں، نیکسٹ میں ویسے پروفائل سے انشاءاللہ آئیں گے تو اس میں پھر آپ اور اچھے طریقے سے بھی سوال کر سکتے ہیں۔ تو آپ میں سے بھی جو کرنا چاہیں آپ SMS کر دیں اور وہ پھر اسکرین پر بھی شو ہو جائے گا آپ کے نام کے ساتھ، اور ہم پھر اس کا جواب دینے کی یا اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جن باتوں کا علم ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بتا دی جائیں گی، جن باتوں کا علم یقینی طور پر نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اس پر دیکھ کر آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ شیئر کر دیں، میری پروفائل پہ دیکھیں وہ آ رہی ہے۔ جی بھائی، کوئی دوست سوال کرنا چاہیں تو بالکل کر لیں۔ جیسے آج میرا جو ارادہ تھا وہ خوشی اور غم پر گفتگو کرنے کا تھا۔ انسان کو خوشی کیوں ہوتی ہے اور غم کیوں ہوتا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، کس وجہ سے خوشی اور غم ہو رہی ہوتی ہے، اور کس وجہ سے وہ خوشی اور غم جو ہے انسان کو حاصل ہو رہا ہوتا ہے، اور کس طریقے سے آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ثانی حسنین آئے بھائی، یہ تو بڑے پیارے شاگرد بھی ہیں ہمارے، اور کافی عرصے سے ہم ان کی تلاش میں بھی تھے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش و خرم رکھے۔ لہٰذا اب جو سوالات وغیرہ آپ کرنا چاہیں تو آج کی گفتگو صرف ہرمن ہے، تو پھر ہم اس خوشی اور غم والے سیٹ اپ کو بھی چلاتے رہیں گے، ساتھ ساتھ ہم جو ہے جو آپ حضرات ہم سے سوال کریں گے تو اس پر بھی بات ہم کر سکیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، خوشی اور غم کا تعلق ایک اس سیٹ اپ سے ہے کہ آدمی چاہ تو یہ رہا ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ خوش رہوں، لیکن اس کا تعلق بیلنس سے ہے کہ آدمی کی زندگی میں بیلنس کیا ہے، کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو بیلنس کر پا رہا ہے، کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو روٹین میں لا رہا ہے۔ یوں لگا لیں کہ خوشی اور غم انسان کی زندگی میں ترازو کے دو پلڑے، وہ دو پلڑے جو جھکتا رہے گا وہ آگے چلتا رہے گا، اور جس معاملے میں اگر خوشی والا پلڑا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پلڑا رہ جائے، مطلب کم ہو جائے، تو پھر اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ خوشیاں زیادہ اگر آ گئی ہیں تو فیل کر رہا ہے انسان خوشیاں زیادہ ہیں، اور ہوتا ہے فیلنگس ہے، اس کا تعلق زیادہ خوشی اور غم کا تعلق فیلنگ سے ہے۔ اگر آپ کی فیلنگس کے اندر خوشیاں زیادہ آ رہی ہیں، خوشیوں کو زیادہ آپ محسوس کر رہے ہیں تو آپ خوش ہیں۔
اور اگر غم کو محسوس کر رہے ہیں تو آپ غمگین ہیں۔ 1 منٹ میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے خیال میں اگر کسی کے کوئی پیارا چلا گیا ہے، بیٹھے ہوئے کوئی ذہن خالی رکھا ہوا آپ نے، بالکل بالکل خالی ہے، اچانک کوئی پیارا چلا گیا، کسی کا والد چلا گیا، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کا بھتیجا وہ چلا گیا دنیا سے، اس کا خیال آ گیا، اس کی باتیں یاد آنے لگیں، اس کے بعد کے حالات یاد آنے لگے۔ اب نہ آپ کے پاس کوئی چیز آئی ہے، نہ آپ کے پاس سے کوئی چیز گئی ہے، نہ کوئی بندہ آیا نہ کوئی بندہ گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ آپ کے پاکٹ میں کوئی چیز آئی، نہ آپ کے پاکٹ سے کوئی چیز گئی۔ کچھ خیالات تھے، کچھ سوچ تھی جو آپ ایک طرف لے کر گئے تو آپ وہاں سے غمگین ہونا شروع ہو گئے۔ اچھا اس کے بعد یار میرے بھتیجے کا مجھے بس بھتیجا، میرے ایک نوجوان بھتیجا پچھلے رمضان میں اس کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہم سب کے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے پیاروں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو اس وجہ سے جو بات ہو رہی تھی، ایک ساتھی نے وہ سوال کیا ہے، چلے اس کو بھی میں شو کر دیتا ہوں، پھر بعد میں انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا۔ تو اب آدمی سوچ رہا ہوتا ہے، نہ خوشیاں آئی ہیں نہ خوشی گئی ہے، نہ غم آیا ہے نہ غم گیا ہے، نہ پیسہ جیب سے گیا نہ دولت گئی، نہ عزت گئی نہ شہرت گئی، نہ پیسہ دولت آیا نہ عزت آئی نہ شہرت، لیکن سوچ رہے تھے ہم اس چیز کو، تو اس سے غم شروع ہو جاتا ہے، انسان غمگین ہو جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب ہوا کیا، کچھ نہیں کیا لیکن ہم پریشان ہونے لگے۔ پھر اس کے ساتھ یہ تو چلو ایک ایسی چیز تھی، پھر کچھ ایسی چیز ہوتی جو ہوئی ہی نہیں ہے۔ اچھا اب ایک ہوا کہ آپ کو اپنی شادی کا دن یاد آ گیا، آپ کو وہ دن یاد آ گیا جو آپ نے گریجویشن کی تھی، آپ کو کوئی اپنا وزٹ یاد آ گیا، ارے ہاں یار ہم وہاں پر گھومنے گئے تھے۔ جیسے آج مجھے میرے ایک دوست ہیں بھائی ظفر اللہ بھٹو صاحب، ڈیجیٹل سم چلاتے ہیں، وہ ہم کبھی 96 97 میں ہم ساتھ تھے، وہ آج میری ان سے ملاقات ہو گئی، بڑے خوش، وہ آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، اپنا چینل چلا رہے ہیں ڈیجیٹل سندھ کے نام سے فیس بک پہ، اور انشاءاللہ قریب ہم بھی اس پر دینی اعتبار سے کچھ پروگرام شروع کریں گے۔ تو اب ان سے ملاقات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی، انہیں بھی بڑی خوشی، ہمیں بچپن کی ہم نے ساری باتیں کی، اس طریقے سے ہم بسوں میں آرمی کے ان میں جاتے تھے، وہاں ایف جی میں پڑھتے تھے، یعنی بچپن کی یادیں آ گئی۔ اب نہ انہوں نے مجھے کچھ دیا نہ میں نے ان کو کچھ دیا، لیکن خوشیاں آ گئی۔ تو اسی طرح انسان جب غم کی بھی صورتحال یہی ہے کہ کوئی غم کی چیز سوچ رہے ہوتے انسان غمگین ہو جاتا ہے، خوشی کی چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے انسان خوش ہو جاتا ہے، جس چیز کا پلڑا آپ بھاری کریں۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ سے جا چکی ہیں ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر غمگین ہو۔ لیکن یہ بھی چلو ایک ہے، لیکن زیادہ خطرناک چیزیں جو ہوتی ہیں تو جا چکی ہے، ان سے آدمی کو سبق سیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ماضی سے انسان، یہ کہتے ہیں ماضی کو بھول جائے، نہیں، ماضی سے انسان سیکھتا ہے، اس کو یاد رکھے، اس سے آدمی کو سیکھنا بھی آدمی سیکھ بھی سکتا ہے، اس سے آدمی کو اپنی قدر بھی ہو رہی ہوتی ہے، اپنی منزل اور اپنی رفتار کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ انسان کہاں جا رہا ہے۔ لیکن جو اصل انسان کو خطرناک درجے تک لے جانے والی چیز ہے وہ ہے فیوچر کے حالات، اور وہ بھی خراب حالات، وہم جسے کہا جائے، وہ انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتے ہیں۔ ابھی میں اسلام کی طرف نہیں آ رہا، میں اسلام سے ابھی باہر سمپل ایک لائف کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ایک عام انسان جس مذہب سے جس ریلیجن سے اس کا تعلق ہو، ایک انسان کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو اب سامنے والے ماحول میں آ جائے، اب میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اگر کوئی کاروبار کرے، او ہو یار کاروبار میں یہ نہ ہو کہ اگر یہ چیز ہو جائے، میں نے فصل لگا دی ہے، فصل میری خراب نہ ہو جائے، فصل خراب ہو جائے گی تو پھر میں اب کیا کروں گا، میرے یہ فصل ڈوب جائے گی، فصل ڈوب جائے گی، وہ میرا رشتہ دار کو، میرے اس بندے کو پیسے دینے ہیں وہ نہیں دوں گا، اور اگر وہ پیسے نہیں دیے تو وہ میرے پاس یہ ایک ٹریکٹر کھڑا ہے، وہ اس ٹریکٹر کو لے جائے گا، اب ٹریکٹر کو لے جائے گا تو پھر میرے پاس اور کچھ بھی نہیں بچے گا، پھر میں اگلی فصل کیسے کر سکوں گا،
मेरी जो है वो बच्ची बीमार है, उसका मैं इलाज कैसे करा सकूंगा। एक से एक बुरे से बुरा, गलत से गलत ख्यालात, या जो अपने पास चीजें नहीं है, मेरे पास तो ये चीज भी नहीं है, मेरे पास तो ये चीज भी नहीं है, मेरे पास सिंपल मोबाइल है। जो आजकल की जो मेरी और आपकी जनरेशन चल रही है, सादा मोबाइल है। अब इस सादे मोबाइल से अच्छे वाला क्यों नहीं मिल रहा, मेरे पास तो मेहरान गाड़ी है, GLI क्यों नहीं मिल रही है, GLI जिसके पास है वो भाई लैंड क्रूजर क्यों नहीं मिल रही है, वो है। तो फिर XYZ कोई ना कोई ख्यालात, जो चीजें हमारे पास नहीं हैं, या फिर जिन चीजों के हमें जाने का खदशा हो रहा है, सारी नेगेटिव सोचें हम सोचते जा रहे हैं। अब जो 10 मिनट 12 मिनट अगर आपने ये सोच लिया ना, गोया कि ये सारे के सारी बलाएं बनकर आपके सरों पर, आपके दिमाग पर वो टूट रही होंगी, जब 12 मिनट्स आपने इस नेगेटिव सोच में गुजार दिए। आपके नर्वस सिस्टम पे असर पड़ रहा होगा, आपका स्टमक सिस्टम 60% से ज्यादा जाम हो रहा होगा, आपके आसाब, आपकी तबीयत के अंदर गमगीन, अब जो इतनी प्यारी खूबसूरत बीवी मिली हुई है वो आएगी, उस पर भी गुस्सा आ रहा होगा। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे मिले हुए होंगे, उनको वो खेल रहे होंगे तो उन पर भी आदमी गुस्सा हो रहा होगा। वालिदैन मिले हुए हैं, उन पर भी तवज्जो नहीं होगी। कारोबार, या आज जो तुमने 2 4 8 हज़ार 10 हज़ार जो मुनाफा कमाया, माफ कीजिएगा, ये मेरा कुछ टी टाइम भी है, तो मैंने कहा चलो गपशप में तो फिर सारी चीज़ें चल रही होती हैं। पॉसिबल होता तो मैं आप तक भी चाय को भेज देता। बहरहाल, जो आप अपने सवालात इस मौजू से आप SMS कर सकते हैं, वो हम इस तरीके से हम दिखाते भी रहेंगे, और आगे हम इसको आप शेयर भी कर दें अगर आप इसको बेहतर समझे तो। अच्छा, तो ये सवाल हुज़ैफा जवाद जावेद साहब भाई, हमारे अपनों से भी तो ये सब मनसब होते हैं। सवाल में नहीं समझ सका हुज़ैफा भाई, अगर आप दोबारा कर दे तो ये नवाजिश होगी आपकी। तो बात ये चल रही थी कि अब वो हम सोचते रहे तो हम खुद ब खुद गमगीन होते गए। ना हमारा 1 रुपए का नुकसान हुआ, ना हमारी जमीनें बर्बाद हुई हैं, ना हमारा कोई ट्रैक्टर लेकर गया है, ना हमारे बच्चे का इलाज रुका है, लेकिन इस सोचों ने हमें बीमार कर दिया, इस सोच ने हमें परेशान कर दिया। अब जब ये सोच जब हमें परेशान कर रही है, तो अब हुआ क्या? कुछ नहीं गया ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन बातनी तौर पर यह हुआ कि हम अच्छी भली जिंदगी खुश गुजार रहे थे, उसको हमने कंफ्यूज करके हम परेशान हो गए, हमारी सेहत खराब हो गई। आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ये टेंशन की दवाएं चल रही हैं। ये LP5 होती है, LP होती है, या दूसरी तीसरी की जो दवाएं हैं, क्यों हो रही है? इन ख्यालात की वजह से। अरे भाई, क्यों नुकसानात को सोच रहे हो? नुकसानात सोचने से होते नहीं, होगा वही जो मेरा रब चाहेगा। और अल्लाह तबारक व ताला जो फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला किसी से भलाई का इरादा कर लें तो कौन है जो भलाई को रोक सके, और अल्लाह किसी के साथ भलाई का इरादा का बुराई का इरादा कर ले तो कौन रोक सकता है? तो मुझे और आपको बुराई आनी है, वो तो आनी है, अब उसको सोच के और क्यों बीमार हो जाएं? और जो भलाई मिलनी है तो वो तो मिलनी है। अच्छा, एक तो ये होती है कि हम नेगेटिव सोच करते करते 12 10 12 मिनट आप नेगेटिव सोचेंगे, तो फिर ये मामला आगे बढ़ता रहेगा और हम नुकसान उठाते रहेंगे। और ये हमारे भाई सखावत अली साहब हैं, इनका मैंने पहले कमेंट भी दिया था, अब इनको माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको खुश रखे। सखावत भाई और शौकत अजीज बलोच साहब भी, माशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको खुश खुरम रखे और इन नफसियाती बीमारियों से बचाए भी। बहरहाल, तो हमारी बात चल रही थी कि जब हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो फिर अपना अपना नुकसान कर रहे होते हैं। अब देखें, असल तो दिमाग ही है। जब हर चीज में ये मेरा हाथ यहाँ पर है तो दिमाग ने ऑर्डर दिया है तो यहाँ पर है, दिमाग हाथ कह देगा भाई नीचे कर लो तो नीचे चला जाएगा। तो जब ये इतना बड़ा हाथ दिमाग इशारे से उठा सकता है, ये मेरी टांगे उठा सकता है और मेरे हाथ उठा सकता है, मेरी गर्दन को इधर उधर कर सकता है, तो अब मुझे बताएं कि हमारे अंदर के जो बारीक सिस्टम्स हैं वो तो बहुत हल्का इशारा लेते हैं, उनको कितना डैमेज कर रहा होगा जब ये नेगेटिव सोच रहा होगा। तो लिहाजा हमने नेगेटिव नहीं सोचना,
اور اچھا جی اب خیال آ جاتے ہیں، اکثر یہ ہم کہتے ہیں یار ہم تو نہیں چاہتے سر، اکثر میرے اپنے اسٹوڈنٹس میں نے کافی دیکھے، اور کبھی ہم اس پر بات کریں گے یہ پیار ہو جاتا ہے کیوں ہوتا ہے، پیار ہونا اور ہو گئے پیار میں جب مجنون ہو جائے پھر اس سے ریورس ہونا، یہ بھی ایک سائنس ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا رہا ہوتا ہوں، کبھی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، اگر اس کی سائنس سمجھ لی جائے تو انسان کبھی بھی بھٹکے گا نہیں، اور اگر بھٹک کے اپنا سب کچھ گنوانے کے قریب ہو گیا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ لڑکی مل جائے گی، مجھے یہ پیار مل جائے گا، میری یہ چاہت مل جائے گی، وہ چاہت کوئی بھی چیز ہو، صرف یہ نہیں ہوتا، بعض لوگوں کی چاہت جو ہے وہ گاڑی ہوتی ہے، بنگلہ ہوتا ہے، زمین ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو جو بھی چیز اگر وہ کہہ دیں تو اب اس سے ہم نکلیں کیسے، یہ پوری ایک سائنس ہے، یہ ہوتی بھی ایک ہمارے اپنے طریقے سے ہے، اس کو ختم بھی ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقے سے کیا جاتا ہے، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہاں اب یہ بات بھائی حذیفہ جواد صاحب نے اچھی بات کی ہے، کہ ہمارے سلوک سے بھی خوشی اور غم کا تعلق ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ہم کس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، بالکل اس سے کوئی انکار نہیں۔ اب ہم تو یہ ایک ٹاپک ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اور زیادہ 3-4 دن ہم چلائیں گے، اسی 10:30 سے 11 بجے آدھا گھنٹہ انشاءاللہ میں نے یہ رکھنا ہے، پھر اس کے بہت سارے اسباب ہیں، آج تو کیونکہ میں آج بیٹھا تھا بالکل دماغ خالی رکھ کے کہ بھئی آج کوئی ٹاپک ہو، پھر یہ ٹاپک آ گیا، اب جب آپ لوگ سوال کر رہے ہیں، آپ لوگ جو وجوہات بتا رہے ہیں، اس پر ہم 3-4 دن ٹاپک چلائیں گے، تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم یہ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں تو ساری چیزیں ہمارے سامنے وہ آتی ہیں، تو دماغ چاروں طرف نیگیٹو چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو کچھ گیا نہ آیا، نہ نقصان ہوا نہ کچھ، لیکن ہم ایک غم کے اندر مبتلا ہو گئے، ٹینشن میں مبتلا ہو گئے، پھر جب اس چیز کو جتنا زیادہ کرتے جائیں گے وہ ہمارے دماغ میں اکٹھی ہوتی جائے گی، اور جو آپ نے رویے کی بات کی ہے بالکل اس کا بھی اثر ہے نا، اب کیونکہ رویے بھی جو پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے جب آپ کسی سے پیار، وہ کہتے ہیں نا حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من الصدقۃ ان تلقى اخاک بوجه طلق، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ آپ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملیں، اب صدقہ دیں گے بلا دور ہوگی، بلا دور ہوگی تو یہ ٹینشن سے بڑی بلا کون سی ہے بھائی، سوئٹزرلینڈ کے اندر چلے جاؤ خودکشیوں کی انتہا ہے، جاپان میں چلے جاؤ خودکشیاں ہو رہی ہیں، یورپ میں چلے جاؤ خودکشیاں ہو رہی ہیں، کیوں؟ یہی وجہ ہے، مایوسیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، تو اخلاق، اچھا اخلاق جب آدمی اچھے دکھا رہا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ سارے پازیٹیو طریقے سے مل رہے ہوتے ہیں، جب پازیٹیو چیزیں دیکھیں گے، میں آپ کو بتانا وہی اسی چیز پر آ رہی ہے، جب پازیٹیو دیکھیں گے تو پازیٹیو بنیں گے، اور جب اچھے اخلاق سے جب انسان مل رہا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی پازیٹیو اپنا فیس شو کر رہا ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کی طرف سے بھی پازیٹیو رسپانس مل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان خود پازیٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جب آپ نیگیٹو ہوں گے، نیگیٹو ہونے یا پازیٹیو ہونے میں سب سے پہلے آپ اپنا نقصان کریں گے، ماچس کی تیلی پہلے اپنے آپ کو آگ لگاتی ہے پھر دوسرے کو آگ لگا سکتی ہے، برف کا پانی کا کٹورا پہلے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرتا ہے پھر دوسرے کو ٹھنڈا کرتا ہے، برف پہلے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرتی ہے پھر دوسرے کو ٹھنڈا کر رہی ہوتی ہے، گلاب کا پھول پہلے خود اپنے اندر خوشبو لے کر آتا ہے، اپنے اندر خوشبو کا خزانہ پیدا کرتا ہے پھر دوسروں کو دے رہا ہوتا ہے، تو لہذا یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو جواد بھائی بڑی اچھی بات کی آپ نے، تو لہٰذا ہمیں پازیٹیو ہونا پڑے گا، تو ابھی بات ہم پازیٹیو کی طرف نہیں آئی ہے، تو ہم ویسے کچھ مثالیں اس عنوان سے دے دی، ہم بات کر رہے تھے نیگیٹو ہونے پر، پازیٹیو کے لیے تو بہت سارے طریقے ہیں، کس طرح پازیٹیو ہوں یہ ہم بتائیں گے، کس طرح نیگیٹو ہوا جاتا ہے وہ بتا رہے ہیں، پھر ہم نیگیٹو سے پازیٹیو میں ہمیں کنورٹ کیسے ہونا ہے وہ بھی ہم ابھی ڈسکس کریں گے۔ تو جب نیگیٹو سوچا، ایک مثال میں نے بتائی تھی ذمہ دار کی، فصل نہیں ہوگی تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، میں قرض ادا نہیں کر سکوں گا، وہ قرض دار میرا ٹریکٹر لے جائے گا،
ट्रैक्टर ले जाएगा, मैं आगे कुछ नहीं कर सकूंगा, कुछ खर्च मेरे पास नहीं बचेगा, बच्चों का इलाज नहीं करवा सकूंगा। अब ये सारी नेगेटिव चीजें सोचते सोचते वो बैठा हुआ है एसी के कमरे में, सुकून के रेस्ट लेने के चक्कर में बैठा था। जब ये ख्यालात नेगेटिव आए, एक आया, उसको उस वक्त रिजेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो अच्छा, ये भाई हुजैफा जावेद साहब हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे भाई, थैंक यू, वो मुझे जवाब लग रहा था, सही, हुजैफा जावेद भाई। तो अब उसने खुद नेगेटिव सोचा एक, उस वक्त ही वो अगर पॉजिटिव हो जाता, नहीं भाई अल्लाह का फजल होगा इंशाल्लाह और मेरी फसल अच्छी होगी, तो बात खत्म हो जानी थी। लेकिन उसने नेगेटिव सोचा, सोचते सोचते चारों तरफ जब नेगेटिव चीजें आ गई, तो जब आपने नेगेटिव वाला पलड़ा ज्यादा कर दिया, तो अब आपके ऊपर नेगेटिव चीजों का असर हो गया। जब नेगेटिव चीजों का असर हुआ तो फिर क्या हुआ कि आप बिल्कुल ठीक थे, अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे थे, एकदम आपने अपनी जिंदगी को जहन्नम बना लिया। तो भाई ये दोस्त जो हैं वो आगे शेयर भी करते रहे, और जो सवाल वगैरह इससे रिलेटेड पूछना चाहें वो भी पूछ सकते हैं। रोजाना इंशाल्लाह हम 10:30 बजे, कुछ दिन हम इंशाल्लाह, जब तक मुझे फरागत है मैं इंशाल्लाह आया करूंगा। तो दोस्तों को भी अब ये इस पर आए हैं, और मैं अब मुझे ज़रा ये भी मशवरा दीजिएगा, टेक्निकल में इस फील्ड में हूँ नहीं, यानी मोबाइल की, और इसमें आप दोस्तों में से कोई हो कि एक तो हम ये स्ट्रीम यार्ड से इस तरीके से आ रहे हैं, दूसरा ये कि मैं अपनी मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम से मेरी जो प्रोफाइल है उससे बगैर इस सॉफ्टवेयर के लाइव आया जाए, या फिर वो जो दूसरा मेरा पेज है मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो हमारा पेज है, उससे लाइव आया जाए। ये आप कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं, ताकि हम आगे उस सिलसिले को ज़्यादा मुफीद, हमारा ये ज़्यादा से ज़्यादा सेशन हो। तो लिहाजा उसने नेगेटिव सोच लिया, नेगेटिव सोचते सोचते वो वहां पर पहुंचा नेगेटिव। अब इंसान की लाइफ में ये बात याद रखें, इंसान की लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हैं, और जो जो फ्यूचर के ख्यालात हम सोच रहे होते हैं ये सबसे खतरनाक होते हैं। उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि नेगेटिव सोचे ही ना। हाँ, बतौर प्लानिंग के, प्लान बी सी करने के सोच रहे हैं, यार अगर ये चीज ना हुई तो फिर हम ये कर लेंगे। भाई अगर मिसालों के यार मेरी फसल अच्छी ना हुई तो मैं क्या करूंगा, या तो फिर मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं थोड़ा सा बिजनेस किसी और चीज का भी कर लूं। कोई, अगर मैं गंदम लगा रहा हूं तो साथ कुछ थोड़ी बहुत सब्जियां भी लगा दूं, गंदम में गड़बड़ हो तो सब्जियों में मुझे कुछ मिल जाए, कुछ मैं पैसा किसी और चीज में इन्वेस्ट कर दूं। अगर इस एतबार से नेगेटिव को अपने सामने रख के कर रहा है, वो प्लानिंग के तौर पर ठीक है, लेकिन वैसे ही नेगेटिव सोचता रहे तो इंसान परेशान हो जाता है, और वो घाटे में जाता है, और वो आदमी जो नेमतें मिली हुई होती हैं उनका ना शाकिर भी बन जाता है, अल्लाह का भी ना शाकिर होकर खुद अपने आप को तकलीफ और दुख में डालता है। तो लिहाजा करना क्या चाहिए, पहली चीज के जब नेगेटिव कोई चीज आए तो फौरन उससे अपनी तवज्जो हटा ले, कहीं ना कहीं मसरूफ हो जाए। दूसरी चीज, लाइफ के अंदर मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें अगर हमारे पास नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं भी तो सही। भाई हमारे पास, अगर किसी के पास जेल है, गाड़ी नहीं है, किसी के पास मेहरान तो होगी, उसका शुक्र अदा करे। मेहरान नहीं है तो मोटरसाइकिल होगी, उसका शुक्र अदा करो अल्लाह का। वो नहीं है तो दो टांगे तो होंगी। अरे भाई कितने लोग हैं जिनकी टांगे नहीं है, मैं और आप तो दौड़ तो सकते हैं। अब अगर टांगे हैं, जूतियां नहीं है, तो टांगे तो अल्लाह ने दी हैं। और कितनी नेमतें हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे दो आंखें दे दी हैं, जबान दे दी है। और बहुत सारे लोग बहुत मुख्तलिफ किस्म के कंफ्यूजन में, मुख्तलिफ किस्म की नेगेटिव चीज़ों में पड़े होते हैं। तो हमने अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चीज़ों को देखना है। जो सूरह रहमान में आपने देखा है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जो अल्लाह ने बार बार कहा है, वो इसीलिए कहा है, वो अल्लाह को खुद कहने की जरूरत नहीं कि अल्लाह की नेमतों को तुम देखो, नेमतों को देखो। हम अल्लाह की नेमतें देखते ही नहीं। अपने जिस्म में ही हम अल्लाह की नेमतें देख लेना, तो यकीन जाने हमारे पास कुछ भी ना हो ना, भीख मांग कर भी रोटी खा रहे हो ना, तो फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। कितने लोग हैं अरब खरब पति हैं, खाने का पूछो कि नहीं जी गोश्त खा लो, नहीं जी डॉक्टर ने मना कर दिया है।
अच्छा जी ये मिठाई खा लो, नहीं जी मुझे शुगर है। ये जी असली देसी घी का देसी मुर्गा आपके लिए मैं फ्राई करवा के लाया हूं। तो फिर अब मुझे बताएं, आप खा लें? का नहीं बेटा, मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया है, मैं देसी घी नहीं खा सकता। अरे भाई, अब वो करोड़पति हैं, सारी चीजें हैं, और मेरे और आप जैसे कुछ भी ना हो, सिर्फ जिस्म हो, तो चटनी खाने में भी तो मजा लेते हैं कि नहीं लेते मेरे भाइयों? अरे वो एक छोटे से झोपड़ी वाले होटल पर भी बैठकर जो आधी चाय की कटिंग हम लेकर चुस्की लगाकर पी रहे होते हो, तो उसमें भी तो लज्जत हमें आती है नहीं आती? ये भी अल्लाह की नेमत है या नहीं? तो भाई बात यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ये नेमतें जो दी हुई हैं, उनको हर वक्त मुस्तहजर रियलाइज करना है, हर वक्त सोचना है, हर वक्त देखना है। जब हम वो चीजें देख रहे होते हैं तो फिर क्या होता है कि हर जगह हरियाली हरियाली नजर आ रही होती है। अरे वाह भाई वाह, माशाल्लाह, मेरी तो आंखें बड़ी प्यारी हैं, मैं सुन सकता हूँ, कितनी प्यारी प्यारी आवाजें सुन सकता हूँ। सोचे, कभी तसव्वुर करें, सब कुछ हो और आंखें ना हो। दुनिया की हसीन तरीन औरत से आपकी शादी हो जाए लेकिन आपकी आंखें ना हो, तो फायदा है? और दरमियानी दर्जे की बीवी मिल गई है लेकिन अल्लाह ने आंखें दी हैं, तो कितने खुशकिस्मत हैं। वैसे एक नुक्ते की बात है कि बीवी जो है वो ज्यादा हसीन नहीं, दरमियानी हसीन होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई फीमेल भी सुन रही हो तो चलो उनकी फेवर की बात है, लेकिन बीवी ज्यादा वो कबूल सूरत होनी चाहिए। हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती साहब, मुफ्ती सफ़ान साहब फरमाते थे, जब कभी मशवरा हो या कोई बात करे तो फरमाते थे कि भाई बीवी जो हो वो कबूल सूरत हो, यानी जब कभी तैयार श्यार होकर आए तो आपको अच्छी लगे। इससे ज्यादा फिर वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो तो फिर आदमी परेशान होता है, और फिर आदमी जो है वो उस लेवल पर नहीं आ रहा होता। तो बहरहाल, तो बात ये चल रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी हमें नेमतें दी हुई हैं, वो नेमतें हमने हासिल करनी है, और उनको जो हासिल हो चुकी हैं उनको हमने इस्तेजार में लाना है। हर वक्त जब आदमी सोचता रहेगा कि या अल्लाह देखो, मेरे आपने हाथ अच्छे दे दिए हैं, मैं सही सलामत हूँ, मैं अपनी ज़बान से मीठी फीकी गर्म चीज़ों को महसूस कर सकता हूँ, इन कानों से अच्छी चीज़ों को मैं सुन सकता हूँ। अब जब ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, तो फिर अभी तो गड़बड़ हो जाती है, फिर आदमी क्या करे? तो लिहाजा ये जो नेमतें मिल रही हैं, इनको जितना ज़्यादा सोचेंगे आप, उतनी बरकतें आएँगी, उतने आप खुश रहेंगे। ठीक है? और जब खुश आप इतना रहेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप आसानी भी आपके लिए दे देगी और इतने आप परेशान भी नहीं होंगे। दूसरी बात ये कि जैसे सानी ने पूछा कि जी नज़र लग जाती है ज़्यादा खूबसूरत हो तो। हाँ, ये बात भी है भाई, कभी अपनी भी लग जाती है, कभी किसी और की भी लग जाती है। लेकिन देखें, नज़र का तो एक अपना मामला है। नज़र से ज़्यादा जब आदमी साहिब हुस्न होता है या साहिब सरवत माल और दौलत हो, तो फिर उसके नखरे भी बड़े होते हैं। जैसे वो कहते हैं, जब खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। तो जो ज़्यादा हसीन होंगी तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होंगी और उसके नखरे भी ज़्यादा होंगे। तो हमें पॉजिटिव ज़्यादा रहना है, नेगेटिव चीज़ों को कम सोचना है। अच्छा, करना सिर्फ सोचना है आपने, और कुछ नहीं करना। आज की बात का खुलासा कि हमने फिलहाल क्या करना है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, अच्छी चीज़ों को ढूंढना है। जब शैतान और नफ्स हमें अपनी लाइफ में से नेगेटिव चीज़ों को दिखाना शुरू करे, फौरन कन्वर्ट कर दें पॉजिटिव। यार आज तो दाल घर वालों ने पकाई है, उसी वक्त सोचने के भाई शुक्र है मुझे आज बुखार नहीं है, शुक्र है मुझे आज पेट में दर्द नहीं है, तो शुक्र है मुझे आज
पेचिस नहीं लगे हुए, वरना मुझे तो दही खानी पड़ती। भाई शुक्र है आज मुझे जो है सर में शदीद दर्द नहीं है, और शुक्र है या अल्लाह तू मुझे आज दाल रोटी तो दे रहा है। कितने लोग हैं होटलों के बाहर खड़े हुए हैं, कहाँ खड़े भाई, होटलों के बाहर, और कर क्या रहे हैं, तो भाई खाना खिला दो, भाई खाना खिला दो, हर एक को मिन्नतें कर रहे हैं। तो एक आदमी अपने घर का खाना लेके जाता है और वो 20 रुपए ज्यादा देता है, यार इसको 2 रोटी दे देना। अब वो उसको 2 रोटी देता है, वो 2 रोटी लेता है, कागज में लपेटता है, लपेट के लेके जा रहा होता है, और खाना जाके किसी मस्जिद के बाहर जहाँ टूटियां लगी होती हैं, तो वो जाकर वहां पर खा लेता है, पानी पी लेता है, खा लेता है। यार देखो कितना अल्लाह का शुक्र है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े, मेरे रब ने मुझे दस्तरखान पे दे दी। तो ये नेमत है या नहीं है? तो लिहाजा फौरन पॉजिटिव चीज की तरफ जब आप आएंगे तो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। और याद रखें, अल्लाह ने हर एक को जिंदगी में इतना कुछ दे दिया है कि वो जरूर भी जरूर खुश रहेगा। अगर उन चीजों को देख ले, उन चीजों पर नजर रखे जो हैं, तो इंसान खुश रहेगा। और जिस हदीस में भी आता है कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे पर नजर हो, और दीन के मामले में अपने से ऊपर पे नजर हो। तो जब दुनियावी जरूरियात में अपने नीचे पे नजर रखेंगे कि नीचे वाले लोगों पर, तो भाई हम खुश रहेंगे। तो हुज़ैफा भाई कह रहे हैं, तो इन्होंने भी एक बात की है, ये फरमा रहे हैं कि जी खूबसूरत तो हो ना हो, नेक हो। देखें जी, ये तो टॉपिक हम बीवी कैसी हो ये एक अलग टॉपिक है, अब इस पर भी हम कभी बात करेंगे। वैसे मेरा ये टाइम सिर्फ होगा इसी तरह के, आप लोगों के मर्जी के टॉपिक चलेंगे कुछ दिन, मैं खुद भी रिलैक्स रहना चाहता हूँ। अब कुरान हदीस में माशरे में जो आपके लिए बेहतर होगा, बीवी खूबसूरत हो नहीं हो, नेक सीरत हो, किस लेवल की हो, किस तरह की हो, इंशाल्लाह इस पर भी हम आपको गाइड करेंगे। नेक होना तो जरूरी है भाई, अब नेक ही नहीं होगी तो फिर तो जाहिर बात है, फिर तो कोई भी फायदा नहीं। बीवी की खासियत सबसे ज्यादा जरूरी खासियत है कि वो नेक सीरत हो, बाकी बाद की चीजें, ठीक है ना। जिस तरह मोबाइल है, मोबाइल की असल खासियत है कि इसमें हमारी कॉल अच्छी जा रही हो, आवाज में गड़बड़ ना हो, बाकी कैमरा अच्छा हो, और उसके बाद लुक अच्छा हो, ये साइड की चीजें हैं। भैंस में खास चीज है कि वो दूध अच्छा देती हो, फिर उसके बाद बाकी चीजें बाद की हैं। तो औरत के अंदर भी नेक सीरत हो, नेक चाल चलन वाली हो, ये सबसे टॉपर चीज है, नो कम्प्रोमाइज वाली सूरत है यार, ठीक है। बाकी चीजें अलग हैं। बहरहाल ये इस पर हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा ये टॉपिक याद रखूं, और आप लोग भी ये याद हमें करवा सकते हैं ड्यूरिंग द इस सेशन। अब टाइम भी 3-4 मिनट ज़्यादा हो गए, मैंने आधा घंटे का ये सेटअप रखा था। तो अब बात को हम ख़त्म करते हैं खुलासे के तौर पे जिक्र करके, फिर आगे भी आप दोस्त से शेयर कीजिएगा। और ये गुफ्तगू हमारी इंशाल्लाह हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर भी ये मौजूद होगी, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो बात ये चल रही थी कि हम नेमतों की तरफ ज्यादा तवज्जो रखेंगे, अपने दिमाग को ज्यादा रखेंगे, खदशात से बचेंगे, खदशात के सोचने से बचेंगे कि सोचने से कुछ नहीं होता, अल्लाह के करने से सब कुछ होता है। और अल्लाह की वो जात है जो हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करती है, वो कभी भी हमें नेगेटिव नहीं देगी। और हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा होता है, वो जाहिर में अच्छा हो या बुरा हो, वो जाहिर की बात नहीं होती, वो नतीजे पर होता है, नतीजा कैसा आ रहा है। कल हम 2 स्टोरी आपको बताएंगे, जो अभी जहाज जो क्रैश हुआ था, ये मैंने अपनी वाल पर भी शेयर किया है, अगर वहां देख लेंगे तो बहुत अच्छा, वरना खुलासे के तौर पे कि एक आदमी किस तरीके से मौत से दूर चला गया था, फिर अचानक मौत के करीब आया, किस तरह आदमी मौत के मुंह में था, किस तरीके से बच गया। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से हो रही होती हैं। तो अल्लाह ताला ने जो भी करना है वो हमारे लिए अच्छा ही करना है, तो लिहाजा हमें कभी भी नेगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। खुसूसन याद रखें, कभी नेगेटिव ख्याल आ भी जाएं तो उसको 5 मिनट से ज़्यादा एक्सटेंड ना करें, वरना वो आप पर गालिब होना शुरू हो जाता है। और आप जो सैकड़ों नहीं हज़ारों नेमतें हासिल कर रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी ना होगा, वो सारी की सारी नेमतों
से तवज्जो हट जाएगी, और जब तवज्जो हट जाती है तो फिर उनका पता भी नहीं लगता। कभी कभी आप बैठे होते हैं, भूख लगी होती है या फिर चाय की शदीद तलब होती है, चाय सामने आ जाती है, अचानक किसी का फोन आ गया, आपकी तवज्जो वहां चली गई। और ये हमारे रब नवाज साहब कुरैशी साहब हैं। और तो इंशाल्लाह फिर आगे भी आते रहेंगे। तो बात ये हो रही थी, तो लिहाजा अब वो चाहे फोन पर लगे रहे, हम फोन पर लगे रहे तो सूरत हाल ये हुई कि चाय से ध्यान हट गया, अब इतनी तलब थी, ध्यान खत्म हो गया, वो चाय ठंडी हो गई और उससे फिर पता ही ना लगा। तो लिहाजा ये सूरत हाल होती है। तो लिहाजा अब हमें कोशिश क्या करनी है कि पॉजिटिव चीज़ों की तरफ सोचना है, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखना है। नेगेटिव आएंगी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 5 मिनट से ज़्यादा ना जाए, नेगेटिव आएंगी, उनको कोशिश करें कंट्रोल करने की। अब आप एकदम नहीं नहीं, एकदम तो नहीं आ सकती कंट्रोल, कंट्रोल एकदम नहीं हो सकता, लेकिन जब हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे और पॉजिटिव चीज़ों को सोचते रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और नेगेटिव और पॉजिटिव सोच पर और उस पर शुक्र पर, और हम आगे बात करेंगे। जितना पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ों की कसरत नज़र आएगी तो आप खुश होंगे, जितना नेगेटिव सोचेंगे, गलत चीज़ों की सोच में आएगी तो हम गमगीन हो जाएंगे। तो अब आपने फैसला करना है कि आपने गमगीन रहना है या खुश रहना है। अगर गमगीन रहना है तो आप नेगेटिव सोचते रहिए, किसी को आपको कोई कुछ नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली आप गमगीन रहेंगे, जिंदगी जहन्नम खुद बना ले, कोई मसला नहीं। अगर आपने खुश रहना है तो खुद ब खुद आप पॉजिटिव चीज़ों को सोचते रहें, फिर आपको अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव नजर आएंगी, फिर जो आपके दोस्त होंगे उनमें पॉजिटिव चीज़ें नजर आ जाएंगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बन जाएगी। फिर हर वक्त जब आपको पॉजिटिव ही और चीज़ें, मस्बत चीज़ें ही नजर आ रही होंगी, खुशी वाली चीज़ें नजर आ रही होंगी, तो फिर आप खुश। और उम्मीद है अल्लाह ताला आपको खुश रखे और हमेशा खुश रहें, और खुशी के साथ दूसरों को खुशियाँ भी बांटते रहें। तो कल इंशाल्लाह फिर 10:30 बजे फिर इंशाल्लाह इसी खुशी और गम के टॉपिक पर आएंगे कि इनको कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, और इनको कंट्रोल करने के कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो इस्लाम ने बताए हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जो हमारे माशरे में ही मौजूद हैं, और कौन से ऐसे तरीके हैं कि जो हम दूसरों से हासिल कर सकते हैं, अच्छी कंपनी के ज़रिए, अपने रिश्तेदारों के ज़रिए, या जो भी उस पर बात होगी। और जो हमारे भाई ने जो बात की है इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। ये एक और भाई शहबाज अली ने एक सवाल किया है। एक तो टाइम हमारा आज ज़्यादा हो गया है, चलें फर्स्ट डे है लेकिन कोशिश करें कि 10:30 से 11 तक हम रहें। कि भाई वो आदमी कैसे खुश रहे जो हमेशा ही जिसको जो गमगीन रहा हो। भाई बात याद रखें कि गमगीन होना पड़ता है, आप खुद होंगे, कोई आपको करेगा नहीं। और मैंने आपको बताया था कि जिस इंसान को सारा कुछ भी चला जाए, सारी चीज़ें भी जो है वो इंसान से दूर हो जाएं, तो फिर भी ये होता है कि इंसान के पास बहुत कुछ होता है खुश होने के लिए। आपको गमगीन से खुशी वाला बनने के लिए सिर्फ एक काम करना है, पॉजिटिव नेमतों को, अल्लाह की नेमतों को सोचना है, उनकी तरफ ध्यान रखना है। जो चला गया वो तो चला गया, और जो आगे जाना होगा वो भी जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते, तो क्यों गमगीन हो। जो दिया हुआ है उस पर खुश होते रहें, उनको सोचें, उनमें एक्सटेंड कर कैसे कर सकते हैं उनको सोचें। तो जब यूँ सोचेंगे तो फिर, और याद रखें, गम को याद करने से गम बढ़ता है, कोई भी गम हो, ठीक है। गम को ख़त्म करना है, गम से दूर रहना है, गम से परहेज़ करना है। जब गम से हम परहेज़ करेंगे, सोचने को कम करेंगे, तो फिर आप उसको फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं, और फिर अपने गम को भी ख़त्म कर सकते हैं। आज से ही उन गमों को जिन्होंने आपको गमगीन किया हुआ है, क्योंकि आपके सोचने का तनासुब गम की तरफ ज़्यादा है, नेगेटिव ज़्यादा है, इसलिए आप गमगीन हो रहे हैं। लिहाजा उससे आपने बचना है, और लिहाजा और फिर आप खुद ब खुद गम से दूर हो जाएंगे जब पॉजिटिव चीज़ें सोचने लगेंगे। सानी ने एक और सवाल किया है कि लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इस्लामिक वे फॉर नाराज
नजर उतारना है इन सदका। अच्छा अच्छा भाई देखे, इसका सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मुअव्वज़तैन। जब हज़रत हसन और हुसैन के लिए हुजूर को बताई गई ये दुआएं पढ़ के आप दम करें, तो सबसे बेहतरीन तरीका, बड़े बड़े अम्लिया तो कोई काले बकरे की कुर्बानी करो, कोई फला चीज करो, फला नहीं नहीं, सबसे बेहतरीन तरीका नजर उतारने का ये है कि आप 3 3 दफा कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास पढ़ पढ़ के दम करते रहें, अपने ऊपर भी और जिस पक्के की नजर उतारनी, बस नजर उतर जाएगी। दूसरी सूरह कलम की आखिरी आयत है, वो भी बड़ी मुजर्रब है, आप जिंदगी में उसका एहतमाम करें। वयकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअ ज़िक्रा वयक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। सूरह कलम की आखिरी आयत, ये ग़ालिबन 18वें या 19वें पारे में, वो भी नज़र के लिए बहुत बेहतरीन। तो ये दो मुजर्रब अमल हैं, और मैंने पहले वाला बताया वो तो बहुत ही मुजर्रब है, आप उसको 3 3 दफ़ा सुबह शाम पढ़ें। किसी को लग भी जाए नज़र तो आपने क्या करना है, बार बार वही पढ़नी है और वो दम कर देना है। दूसरा, एक चीज़ और अपने मामूल बना लें कि आयतल कुर्सी सुबह शाम 7 7 मरतबा पढ़ें, इंशाल्लाह वो आपको हर आफत से, हर परेशानी से बचाती है। तो बस दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी 10:30 बजे। खुद भी आएँ, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा दावत दें कि अगर वक्त है तो फिर जो भी सवाल जिसके जहन में जो आए, तो इंशाल्लाह वो हम आपको उसका जवाब भी देंगे, जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। और जितना हो सकेगा इंशाल्लाह जो रूहानी मसाइल हों या आपके नफ्सियाती मसाइल हों या माशरती मसाइल, इंशाल्लाह उस पर बात होगी। दुआ में याद रखिएगा। और हमारा एक तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर दरस कुरान जो हुआ पूरा वो मौजूद है। 100 से ज़्यादा बयानात मेरे वहाँ मुख्तलिफ टॉपिक्स पर मौजूद हैं। और ये मोहम्मद मुस्तफ़ा जो पेज है हमारा ये, और मेरी जो प्रोफाइल है उसमें भी आप उस पर लाइक कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह फिर कल 10:30 बजे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, दुनिया और आखिरत की हम सबको भलाई अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।